Hi everyone, this is Dr. Chaitanya. I am a second year medicine resident at JIPMER and I gave the NICT exam almost 1.5 years back. I had an All India rank of 100 in the NICT examination and I'm an undergraduate from AIMS Delhi. I had an All India rank of 4 in the AIMS undergraduate examination and today with a lot of pride I am here and this is because my roommate Karthik has secured an All India rank 2 in the NICT May 2026 examination and I have seen him study in our flat and he was my flatmate through his last 6 months where he was doing radiology here and we'll talk more about that. So it's a very great thing and it is something that I feel all of you should know about and his story is something that all of you should know about and I particularly myself feel very proud of that and he's my junior from AIMS Delhi. So I welcome Karthik. Thank you, Chaitanya. Very formal but we are just sitting here in our flat, just two guys chilling and जैसे हम normally बात करते होते हैं हम we'll try to keep it like that. तो गर्ग अपने बारे में कुछ तो थोड़ा सा बताना चाहेगा? Yeah, sure. Hi, so I'm Karthik Garg. I am 2020 batch AIMS pass out, and in January session I joined here at JIPMER took radiology. So now I gave the NICT exam in May session again, and I have achieved a rank of 2. So yeah. And that rank of 2 is practically rank 1 because nobody knows Who is rank one rank is. 1. So until we know who is rank 1, we can assume Karthik to be rank 1. So Karthik, what was your score first of all? How many corrects you had, how many incorrects you had, and what were your thoughts around that? And what was your overall feeling after the result? So I got 167 corrects and I had left 7 questions. So honestly, I didn't expect this score that I'll get 167 corrects. My paper went well, but I didn't know कि इतना अच्छा चला जाएगा. So yeah. एक तो पेपर देने के बाद इसने बताया नहीं था कि इतना अच्छा गया है ना बिकॉज nobody knows how well their paper went and दूसरा जब रिजल्ट आया तो I asked him, I was probably the first person to call him and ask He was the first person to ask me. कि कैसा हुआ, क्या क्या रिजल्ट है, and he was busy with some family function, he didn't care. And then after I asked him result, after 5-10 minutes he asked me, he sent me his roll number. I thought कि अच्छा बुरा गया होगा. Then he said नहीं confirm करो कि इस roll number पे क्या रैंक है. Then I understood that कुछ crazy हो गया है. But I didn't expect it would be this crazy. So congrats. तो नॉर्मली चल रहा था कि मेरा हमारे घर पे एक फैमिली फंक्शन था. बेसिकली मेरे पेरेंट्स की सिल्वर जुबली थी, तो वो हम सेलिब्रेट कर रहे थे. तो आई वॉज नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट कि क्या रिजल्ट आएगा. आई वॉज कि लाइक एक ठीक है एग्जाम लिख दिया है, अब जाके वापस जो भी रिजल्ट होगा देखेंगे. तो व्हेन इन बिटवीन हिज कॉल केम और आई थिंक ट्रूली एक्सपेक्ट भी नहीं तो दैट इज नाइस एंड वो पेरेंट्स की एनिवर्सरी के लिए अच्छा गिफ्ट हो गया. ठीक है. तो आई वांटेड टू, आई थिंक एवरीबॉडी विल वांट टू अंडरस्टैंड कि एंड एज अ कोइंसिडेंस हम डिस्कस करेंगे, हमारे बीच में बहुत चीज़ें कॉमन है बट मेरे भी INICT में 167 करेक्ट थे and I had an all India rank of 100 but of course I had attempted all 200 questions. So I think leaving those 7 questions mattered a lot to you, I feel. Yeah. Second thing is कि क्या था इस बार difficulty of the paper and how has the score correlated with the rank? So while attempting the paper तो मुझे यही लगा था कि paper is on the difficult side. तो basically जो questions थे, कुछ questions they were like simple questions were very simple as it is always the case कि वो तो तुम कर सकते थे, but some questions were like कुछ भी पूछ रखा था. तो लास्ट टाइम से जो मैंने एक चीज़ चेंज करी कि यूजुअली जो एक एडवाइस हम देते हैं INICT में कि अटेम्प्ट हाई, कि इवन इफ यू आर एबल टू रूल आउट वन ऑप्शन देन यू शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चन. So last time I took this advice too hard and I attempted all the questions. Even if I was not able to rule out even one option, I went ahead with it and attempted it. तो उसमें मुझे काफ़ी मतलब नेगेटिव्स मेरे आ गए थे. I got a rank of 59 by the way last time. So इस बार आई वेंट इन विद द माइंडसेट कि मुझे कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए क्वेश्चन का, देन ओनली आई विल अटेम्प्ट. सो से फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था, उसमें उन्होंने दे हैड आस्क्ड अ कट ऑफ ऑन MRI फॉर सम डेफिकोग्राफी ऑन दे हैड आस्क्ड लाइक इज इट 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल ही फैक्ट बेस्ड. या तो उसमें आई वाज लाइक कि नहीं इस बार आई लीव दिस कि तो
वो ऐसे कर करके देयर वर अ टोटल ऑफ 7 क्वेश्चंस व्हिच आई लेफ्ट एंड आई थिंक बट इन टाइप के क्वेश्चंस को कई लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं. डू यू थिंक इफ यू हैड डन दैट दैट वुड हैव मैंने किया एक क्वेश्चन असेंडिंग डिसेंडिंग से भी. सो एक क्वेश्चन ऑप्थेल में आया था. सो पावर ऑफ लेंसेज या. सो इट हैड लाइक 4 लेंसेज का पावर, 3 नंबर्स थे और एक कुछ और रैंडम सा था. और राइट साइड पे जिससे मैच करना था इट वाज लाइक करेक्शन फैक्टर क्या होएगा. सो आई वाज मेरे को नहीं आइडिया था वो क्या है ना, मुझे सब उस टॉपिक का कुछ आइडिया नहीं था. सो आई थॉट कि बट जितना पावर होगा उतना ही करेक्शन फैक्टर होगा. सो आई अरेंज द बट इसमें इन ऑर्डर. लॉजिक हो गया है ना. हाँ, आई वुड हाँ. से स्टिल एक लॉजिक हो गया इवन दो नंबर्स बट गेस. सो आई विल से परहैप्स द बॉटम लाइन इज कि अगर गेसेबल है तो गेस Yeah. करो, अगर लॉजिक कुछ exist भी कर लगा सकता पा रहे है. हो. या बट अगर कोई लॉजिक नहीं है और एब्सोल्यूट फैक्ट है हम्म. तो प्रॉब्ली छोड़ सकते हो. हाँ, बेटर आइडिया इज टू लीव. या ठीक है. तो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ वाज आवर जर्नी एंड व्हाट आर द कॉमन थिंग्स. तो आई फर्स्ट मेट गर्ग व्हेन वी वर इन एलन चंडीगढ़ एंड ही हैड कम फ्रॉम पटियाला एंड बड़ा खतरनाक था फिजिक्स में. तो दैट वाज क्लास 10th. सो आई गेस दैट इज अराउंड व्हाट 9 years back, 2017. या 9 years. 9 years back. So तब we were on the same path. Fortunately भाई ने सोचा कि मैं IIT करूँगा and he left our batch and I continued on my path. And then so we were the same batch. Then he did 1 year of IIT. Maybe you want to tell that story? not 1 year, like 2-3 months ऐसा हाँ. किया. And उसके बाद भाई ने दोबारा तैयारी करके एम्स भी निकाल लिया. And he came as my junior. So that was the second common place we met. एंड देन उसके बाद फिर एम्स हुआ. एम्स में वी वर सीनियर जूनियर. उसके बाद एम्स के अंदर भी देयर वाज अ सोसाइटी दैट मित्तल फाउंडेड. आई वाज द लाइक सेकंड सेक्रेटरी. सो ETC वी फाउंडेड एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी. देयर वाज नो सच सोसाइटी इन एम्स अर्लियर. सो एम्स में आई थिंक पूरे मेडिकल कम्युनिटी में ऐसा नहीं था पहले. हम्म. एंड आई थिंक उसके बाद से हैकाथॉन्स वगैरह कराना कॉमन हो गया. यस. सो उसमें हमने काफ़ी साथ में काम किया. एंड उसके बाद फिर व्हेन आई गॉट माय रिजल्ट इन जनवरी तो आई वाज गेटिंग जिपमर. तो एम्स दिल्ली में अभी एज ऑफ नाउ द गो टू पर्सन फॉर जिपमर इज मित्तल. सो यू हैव टू आस्क एनीथिंग अबाउट जिपमर, यू गो टू मित्तल. सो सेम ऑन द सेम लाइंस आई आस्क्ड मित्तल के भाई क्या करना है. तो कहते हैं आजा अच्छा है. तो आई वेंट एंड अभी हम फिर रूममेट्स. Yeah, so we were roommates last 6 months and देखा मैंने इसका सारा journey and particularly I was a medicine resident in my first 6 months. I mean I'm still a medicine resident and he is going to be one. But as a medicine resident the first 6 months are very hectic, and very few people know it. I also gave the exam a second time. But obviously थोड़ा बेकार रैंक आया था. मतलब decent but ऐसे it was not as if I could have cracked the exam with my residency. Second thing is I was never motivated enough because I loved medicine and I loved medicine here. Like every moment was hectic, but every moment that I was there, I was loving it. So it was very difficult for me to have another thought about anything. I just gave the exam out of the thought that okay, I'll just go ahead and give the exam. But he was a bit motivated that I have time and I will give the exam. And I saw him study. एंड मैं बैडमिंटन वगैरह खेलने जाता था या बीच में ब्रेक पे जाता था. तो यूज्ड टू बी लाइक नो आई विल टेक सम टाइम एंड आई विल पुट एफर्ट. ऐसा नहीं है बीच में हमने पार्टी करी है, सब कुछ किया है. टीवी शो भी देखा है, मूवी भी देखी है. तमिलनाडु में मतलब पौंडीचेरी में छोले भटूरे भी खाए हैं, सब कुछ किया है. बट हाउ वाज प्रिपेयरिंग विद रेजिडेंसी फॉर यू एंड क्या एलिमेंट्स डिफरेंट है इन प्रिपेयरिंग अ रेजिडेंसी फ्रॉम basically a lot of people would be doing some jobs as a government medical officer or maybe serving their bond. तो उन लोगों के लिए particularly important है कि how do you prepare for the exam with your residency? तो इसमें मेन थिंग इज जैसे मित्तल ने बोला कि ही वाज नॉट मोटिवेटेड इनफ. तो मैं भी आई वुड लाइक टू क्लियर कि आई वाज नॉट आल्सो वेरी मोटिवेटेड कि मुझे करना ही. इट वाज नॉट अ डू और डाई सिचुएशन फॉर मी बिकॉज रेडियोलॉजी हियर वाज आल्सो फाइन. जस्ट इट वाज जस्ट कि आई वॉज लाइक कि मैंने एक ही अटेम्प्ट दिया है, वाई नॉट ट्राई वंस मोर एंड गेट इन टू लाइक दिल्ली और चंडीगढ़ विच वॉज फर्स्ट क्लोजर टू माई होम, विच वॉज मोर कन्वीनियंट टू मी. सेकेंडली
like I was getting some second thoughts about my branch. So I wanted to be in a position where I could take that decision instead of taking this decision out of what I'm getting at the track. So my motivations were these. So like if you are preparing with your residency or any of your other jobs, then the thing is कि so there are two scenarios. One is कि it's like a do or die situation for you, and second is you are like me कि you are थोड़ा एक चिल हो. डू और डाई में ज़्यादा स्ट्रेस भी आ जाता है फिर मे बी चिल में थोड़ा सा Yeah. बैक ऑफ द माइंड एक प्रेशर कम रहता है प्रेशर कम रहता है, बिल्कुल बिल्कुल. तो उसमें यू आर लाइक कि ठीक है देखा जाएगा वाली चीज़ हो जाती है. तो उसमें फिर वही है कि अगर इफ़ यू आर इन अ चिल प्लेस लाइक मी, तो उसमें तो इट्स मोर अबाउट कि तुम कांटेक्ट में रहो अपने स्टडी मटेरियल के साथ, देन तुम फुल फ्लेज्ड वैसे पढ़ाई नहीं कर सकते जैसे लोग सब कुछ छोड़ के 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं. यू कांट कम्पीट विद दैम. यू हैव 2-3 आवर्स अ डे और उसी को तुम्हें यूटिलाइज करना है. और आई थिंक वो ना कॉन्ट्राडिक्टरली कुछ तुम्हें हेल्प कर देता है. अब तुम्हें होता है कि तुम्हारे पास 2 ही घंटे हैं, तो तुम वही कंटेंट पढ़ोगे जो दैट इज सुपर 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 इम्पोर्टेंट, ये तो पढ़ के ही जाना है. सो या तो तुम वो पढ़ते रहो एंड कीप योर एक्सपेक्टेशंस लो. अगर तुम ऑलरेडी वो, तो ऐसे नहीं एग्जाम तुम दे सकते कि भाई इफ इट डजंट हैपन तो क्या करूँगा मैं. तुम वो वाली चीज़ नहीं कर सकते. कीप योर एक्सपेक्टेशंस लो, अपना काम करते रहो एंड लाइक फिर देखो हाउ इट गोस. आई थिंक सॉर्ट ऑफ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जब हम कोई साथ में रेजिडेंसी कर रहे हैं तो हमें पता है हमारे पास टाइम ऑलरेडी लिमिटेड है, तो हम प्रॉब्ली वो अपने 5-6 आवर्स का जो यूटिलाइजेशन है वो बेटर करने की पोजीशन में होता है एज कम्पेयर टू समवन हु फील्स कि मेरे पास तो पूरा दिन है. So we become more focused by chance. So that extra optimization, if you can use to your advantage by doing the more high-yield content, I think possibly you might be more focused. और आई थिंक वो खुद से हो जाता है. अगर तुम्हारे पास पूरा दिन है पढ़ने के लिए तो यू आर लाइक काइंड ऑफ बोर्ड ऑल्सो. वैसे इफ यू आर इन अ जॉब तो तुम आए हो तो तुम्हारा होता है कि चलो एक कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा रेजिडेंसी का इन दैट सेंस. आई थिंक सो बिकॉज मोर ऑल्सो जॉब भी इज नॉट लाइक कि तुम कुछ और जॉब कर रहे हो. यू आर डूइंग अ जॉब विच इज रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड ओनली ना. तो उसमें तो तुम यू आर लर्निंग एवरीथिंग एवरी डे. यू आर लर्निंग समथिंग, तो इट हेल्प्स फॉर्म दो सिनेप्टिक कनेक्शंस जो तुम्हें चाहिए. हाँ तो या आई थिंक तो मतलब कभी कभी कोरिलेशन होता था कि प्रीवियस ईयर टॉपिक ये है और सिमिलर केस सीटी फॉर्म में पोजीशन आ गई. या बिल्कुल बिल्कुल. मैं तो थोड़ा था भी अभी वैसे कि जैसे जो भी इंडिकेशन के लिए सीटी वगैरह आता था तो हमें एक एक्सेल शीट में एंटर करना होता था. तो साथ साथ में मेरा चैट जीपीटी खुला होता था कि इसमें से क्या क्या मुझे पढ़ना है. तो आई यूज्ड टू स्टडी देन एंड देयर. तो वो एक काइंड ऑफ चीज़ है कि इफ यू आर डूइंग अ जॉब और रेजिडेंसी एंड यू सी समथिंग यू ट्राई टू रीड अप more about it and read it as if it will come in the exam. Nice. ठीक है, तो एक बार हम it's not a 6-month journey for anyone and anybody who claims कि हमने 6 महीने में या 3 महीने में एग्जाम निकाला है is bluffing. So there is a background to it, something that started from MBBS, something you would have done in your internship, and the bulk of that effort is in the last 6 months. So we'll talk about what was your mindset in MBBS, फिर internship में क्या preparation strategy थी और last 6 months में तो हमने discuss किया. ओके. सो MBBS के टाइम पे आई वॉज नॉट वेरी मोटिवेटेड कि मुझे करना ही करना है. आई वॉज लाइक काइंड ऑफ ओपन टू ऑप्शंस कि पीजी भी कर सकते हैं या कुछ ऑल्टरनेट पाथ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. कोई कुछ आइडिया कुछ अच्छा मिल जाए स्टार्टअप वगैरह का तो उसमें भी आई कैन स्पेंड नेक्स्ट 2-3 ईयर्स. तो मैं ऐसे कोई बहुत ज़्यादा बाकी लोगों की तरफ जो कई लोग कुछ 3rd ईयर से ही बहुत ज़्यादा वो जाते हैं कि मतलब दैट्स ऑल्सो पॉजिटिव थिंग कि उनको क्लैरिटी होती है कि वी हैव टू गो टू. हम तो गाली देंगे उनको. तो फिर मैं वैसे नहीं था मोस्टली. बट एक जो अच्छी चीज़ मैंने MBBS टाइम में कर ली दैट वुड बी आई थिंक स्टेप 1 देना. दिस आई वुड रिकमेंड टू एनीवन हु इज़ व्यूइंग कि अगर आप अपने MBBS ईयर्स में हो तो अगर आप कर सकते हो तो स्टेप 1 का एग्जाम या तो लिख दो या फिर उसका जो भी कंटेंट है वो एटलीस्ट रीड कर. स्टेप 1 लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो 70,000 रुपये खर्च करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई फील वो एक तुम्हें गोल दे देता है. नहीं तो तुम 3rd ईयर में थोड़ा डायरेक्शनलेस पढ़ाई कर रहे होते हो.
है ना, तुम थर्ड ईयर में बैठ के फाइनल ईयर की मारो की वीडियोस देख रहे हो जिसका इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कहीं ना कहीं उस टाइम पे MLE का पढ़ना या स्टेप का पढ़ना तुम्हें कोरिलेशन देता है, तो पढ़ इस हिसाब से लो जैसे स्टेप दोगे, बट दो या ना दो वो तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन या मोटिवेशन के ऊपर या तुम्हारे अगले गोल के ऊपर डिपेंड करता है। पर आई थिंक अगर कर सकते हो तो ट्राई के फर्स्ट एड एटलीस्ट पढ़ो, और प्लस अगर कर सकते हो तो यू वर्ल्ड के भी क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस एटलीस्ट सॉल्व करो। हाँ, तो अगर तुम MBBS में इतना कर लेते हो, आई थिंक दैट्स उसको फिर आगे उस पे बिल्ड करना इज वेरी वेरी इजी। So perhaps before internship, sort out your first and second year subjects, and a good way of doing that is to do first aid or prepare for USMLE as if you are going to give it. तो फिर इसके बाद internship, सो उसके पहले फाइनल ईयर। सो फाइनल ईयर में नॉर्मल वही जो एग्जाम्स अपने फाइनल प्रॉफ्स होते हैं उसमें भी तुम्हारा अच्छा खासा नॉलेज बेस बिल्ड हो जाता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि तुम उसमें ना जो भी पढ़ो कम पढ़ लो लेकिन अच्छे से पढ़ो। कि फॉर एग्जांपल अभी भी जो मैंने मैनेजमेंट लिखे हुए हैं, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रॉफ के क्या होते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का क्या मैनेजमेंट है, या एस्मा का क्या मैनेजमेंट है, या फिर अपना कुछ कॉन्स का क्या मैनेजमेंट है। तो ये सारी चीज़ें कि मैंने मैनेजमेंट एक जगह लिख रखे थे, तो इवन अभी भी मुझे रेफर करना हो तो मैं वो वाले अपने नोट्स को रेफर करता हूँ। तो मेरा एक भी जो भी टाइम पढ़ाई में गया हुआ है मैं उसको पूरा वापस लेता हूँ कि मैंने एक बार पढ़ लिया, अब मैं इस टॉपिक को दोबारा नहीं ऐसे इस पर टाइम वेस्ट करूँगा। सो फाइनल प्रॉफ या कोई भी पढ़ाई कर रहे हो उसको इस तरह से करो कि कम पढ़ रहे हो बट समझ के कर रहे हो, वो आगे तुम्हारे काम आएगी। नहीं तो तुम अगर सिर्फ उससे निकलने के लिए करोगे कि 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट्टा मार लिया आगे चले गए, सो दैट वुड बी अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। सो बॉटम लाइन इज कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एक ही बार पढ़ो। दैट इज द काइंड ऑफ द फेयर थिंग टू से। एंड सो इंटर्नशिप पे क्या होगा इसके बाद? तो इंटर्नशिप में अब तुम्हें सभी सब्जेक्ट्स का आइडिया है, जैसे हो सकता है सभी सब्जेक्ट्स का आइडिया नहीं भी होगा, मेन सब्जेक्ट्स का तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि ऑब्स गायनी में क्या है, सर्जरी में क्या है, मेडिसिन में क्या है ना, या फर्स्ट सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स में क्या है। चलो छोड़ो, तुम्हें नहीं पता फोरेंसिक यू डोंट नो, इट्स ओके, ऑप्थेल यू डोंट नो, इट्स ओके। तो अब तुम स्टार्ट करो, तुम्हें जिस भी एग्जाम को टारगेट करना है, जैसे मेरे को INSET देना था तो उसके PYQs से ही स्टार्ट करो। तुम्हें क्या दिखेगा कि इफ़ यू हैव डन योर कोर्स वेल तो तुम 45 to 50% क्वेश्चंस अभी सही से मार्क कर रहे हो, सही कर रहे होगे। अब जो 50% चंक बच गया उसमें तुम्हें देखना है कि क्या तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया हुआ, कि तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, या तुम्हें कोई ऐसा है कि कुछ टेबल नहीं पता, कोई TNM क्लासिफिकेशन नहीं पता, या ऐसी कोई चीज़ नहीं पता विच यू कैन लाइक मेमोराइज। तो अगर तो तुम्हारा कंसेप्चुअल लैकिंग है उस टाइम पे तुम्हें ये खुद कॉल लेना है। बेसिकली मैं या मित्तल अभी तुम्हें नहीं बता पाएंगे ये चीज़ कि डू दिस, यू हैव टू टेक दिस कॉल ऑन योरसेल्फ कि तुम्हारे कंसेप्ट्स लैकिंग है तो फिर तुम एक रीड दो, एक सीरियस रीड पूरे सिलेबस को दो बिफोर गोइंग इनटू जो प्रॉपर एग्जाम का फेज है। अगर वैसे नहीं है तो यू कैन डायरेक्टली गो के PYQs करो, उसमें देखो तुम्हें क्या क्या नहीं आ रहा, स्पेसिफिकली वो याद करते जाओ और अपना रिवीजन करते जाओ। तो आई थिंक वो एक साल जो है तुम डेडिकेटेडली सिर्फ एग्जाम स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ो। सो बेसिकली द रियल रिविजन, द बार पढ़ो वाली चीज़ें स्टार्ट इन internship because you have already read everything once and you can use the previous year questions as a self test of whether I need to do something detailed or whether I can straight away jump to doing my previous year questions properly and sticking to a rapid revision resource or something very short like BTR or maybe or any revision or whatever revision it is, yeah। और इसके बाद अब जब हमने इंटर्नशिप अटेम्प्ट भी दे दिया तो उसके बाद क्या पढ़े, मतलब उसके बाद तो हमने रिवीजन भी कर लिया, तो उस टाइम में क्या पढ़ना है? उस टाइम में फिर थोड़ा ट्रिकी ये हो जाता है कि अब तुम्हें लगता है कि अब तो सब पढ़ लिया, और ऑनेस्टली मैं बोलूँगा कि उस टाइम पे ना पढ़ने से ज़्यादा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि तुम कैसे अपना टाइम यूटिलाइज करो। तुम बैठ के दोबारा अगर सारे मेन वीडियोस देख रहे हो तो उससे हेल्प नहीं होगा। तो मैं इसको ऐसे ही समझता हूँ, जैसे मान लो कि तुम्हें 200 पॉइंट्स आने चाहिए टिल द डे ऑफ एग्जाम, है ना। तुमने रीड कर करके 120 पॉइंट्स तुम्हें आते हैं। अब तुम्हारा जो गेम है वो है कि तुम्हें वो 80 पॉइंट्स सीखने हैं। अब उस 80 पॉइंट्स को सीखने का वन वे इज कि तुम सारा रीड करो, बट तुम्हें क्या दिखेगा ना कि तुम अगर दोबारा रीड करोगे तुम वही 120 पॉइंट्स दोबारा रीड करके कॉपी बंद कर दोगे।
तुम्हारा फोकस नहीं जाएगा उन वो चीज़ों पे। 80 एक्स्ट्रा चीजें लर्न करने में तुम इनएफिशिएंट हो। बहुत इनएफिशिएंट हो गए। हाँ, तो उसके जो 2 तरीके मैं यूज़ करता हूँ। सो अगर तो कोई बड़ा सब्जेक्ट है उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ क्वेश्चंस में क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही उठा लो तुम, अगर तुमने अच्छे से नहीं किए तो उनसे तुम फिर वो, मान लो तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, 5 ऐसे पॉइंट आए, तुमने अपना 120 को 125 कर लिया। और अगर कोई छोटा सब्जेक्ट है, शॉर्ट सब्जेक्ट है, तो उसमें मैं क्या यूज़ करता हूँ कि नोट्स उठाता हूँ। अब नोट्स पढ़ता हूँ लेकिन मैं नोट्स को स्कैन करता हूँ कि ये मुझे आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये पॉइंट नहीं आता, इस पॉइंट को मैंने अलग जगह लिख लिया। तो उससे फिर क्या है कि बेसिकली तुम्हारा जो स्टडी टाइम है उसमें यू आर एडिंग ऑन जो तुम्हारे 120 पॉइंट्स है, रेदर देन दोबारा वही तुम रीड करते जा रहे हो। तो बेसिकली बिफोर रीडिंग अ रिसोर्स एक स्किप थ्रू रीडिंग कर ली, जिसमें उन 120 को इग्नोर किया और उन 80 को सिलेक्टिवली सिलेक्ट करके एक कॉपी में रख लिया और Yeah. उन 80 को दोबारा रिवाइज करा, यस, so that those 120 never cross your eyesight again. या बिकॉज दैट इज वो, इट्स एज गुड एज टाइम तुमने नहीं पढ़ा। अगर तुम सेम ही चीज़ बार पढ़े जा रहे हो तो इट्स नॉट गोना हेल्प बियॉन्ड अ पॉइंट, है ना। वन मोर थिंग जो मैं यहाँ पे आई वुड लाइक टू ऐड कि जो ये 2 फेजेस हैं, एक है नॉलेज बिल्डिंग वाला MBBS वाला और एक है ये इंटर्नशिप वाला। तो नॉलेज इट्स ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, मित्तल भी एग्री करेंगे शायद कि बहुत ही कॉमन है कि लोगों को नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, बट वो इंटर्नशिप वाला जो उसको स्पेसिफिकली क्यूरेट करना है जो अपनी नॉलेज को उस एग्ज़ाम के हिसाब से, उसमें इतने अच्छे नहीं होते। तो ये इसको तुम अपने एडवांटेज के लिए भी यूज़ कर सकते हो कि हो सकता है तुम इतनी नॉलेज नहीं हो, बट तुम जो ऐसे कितने लोग हैं अपने जिनकी बढ़िया रैंक आई है बट नॉलेज बहुत ज़्यादा है, मतलब या इनफैक्ट कम भी है नॉलेज। का जैसे कोई ना कोई लोग हैं अपने बैच में, हम्म। मेरे बैच में जैसे, जिन्होंने कम पढ़ाई करी बट बहुत अच्छा रैंक बहुत आया। अच्छा रैंक है, या कई लोग हैं जिन्होंने बहुत पढ़ाई भी करी हुई थी बट उनका इतना बढ़िया रैंक रैंक नहीं आया, तो वो डिफरेंस ये हो गया कि सबका नॉलेज बिल्डिंग फेज अलग है। अलग है। और जो जिन्होंने अपना चीज क्यूरेट करके अपना एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी बढ़िया कर ली, वो उनके लिए इजियर था जिनका नॉलेज बेस अच्छा था, बट जिन्होंने इस चीज को उतना फोकस तरीके से नहीं किया, दे विल लूज आउट। दे विल लूज आउट। तो यू डोंट वांट टू बी द पर्सन कि जिसने नॉलेज बेस अपना अच्छा प्रिपेयर किया है और उसके बाद तुमने खराब कर लिया। उल्टा ऑब्वियसली तुम अगर तुम्हारा जो भी मतलब, या तो तुम लास्ट में जाके हगो मत या तुमने अगर शुरू में नहीं किया है तो लास्ट में तुम फोड़ो, मतलब डू ईदर ऑफ द थिंग्स, आई गेस। नाइस। तो ठीक है, ब्रॉडली हमने एक स्ट्रैटेजी माइंडसेट डिस्कस किया। टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक रिसोर्सेज, I'll first tell you some resources, you tell yes or no, whether you use them or not, and then you add on any resources if you want. Okay. So a resource is Marrow. Marrow, yes. Yes. Okay. So थोड़ा elaborate, कब use किया, कितना use किया, कब use करना stop किया? Marrow का mainly I used the app, तो उसमें ऐप में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं दोज आर नाइसली गिवन, तो उसमें तुम अपने हिसाब से उनको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज कैसे भी कर सकते हो। एक्सप्लेनेशंस भी डिसेंट हैं, आई वुड से द PYQ एक्सप्लेनेशंस आर गुड, डिसेंट। रिसोर्स वो भी दिया हुआ है, उसका रेफरेंस भी दिया हुआ है। कई बार थोड़ा मुझे ऐसे लगा कि बहुत एग्जाम ओरिएंटेड नहीं लिखा हुआ, थोड़ा एक्स्ट्रा या थोड़ा कम, क्योंकि हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड कंपैरिजन यूवर्ल्ड हो जाता है। Yeah. तो उस सेंस में कहीं ना कहीं वो एक्सप्लेनेशंस, बट इंडियन सेटिंग में आई डोंट थिंक देयर इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव एज ऑफ नाउ। बीजेपी की तरह। हाँ, बट ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आई यूज्ड मैरो ऐप उसमें। सो मेनली फॉर द क्वेश्चंस, क्वेश्चन वीडियोस का बहुत रोल, वीडियोस का बहुत रोल मेरी नॉलेज फेज में है। हाँ, या मे बी नॉलेज फेज में, बट आफ्टर मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई आई डोंट थिंक मैंने कोई भी एक पूरा मेन वीडियो देखा है कभी भी। और उसके अलावा ये रैपिड रिवीजन भी बहुत ही सिलेक्टिव, मे बी नोट्स पढ़ लिए बट वीडियोस मुझे यूजुअली मैंने थोड़ा सा bulk of the focus was questions, I guess. Yeah. Okay. Second, yes or no resource, BTR. BTR, yes, I used. BTR I used basically जो कंसोलिडेट करने का प्रोसेस होता है, जो मैंने बताया कि तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स एक जगह पे लिखने हैं। सो BTR लाइक काइंड ऑफ आउटलाइन उसमें दिया हुआ है, तो उसको तुम एज एन आउटलाइन यूज़ कर सकते हो कि अब इसके ऊपर तुम लिखते जाओ। तो मेरे BTR के अलावा भी एक
नोटबुक है तो उसमें वो चीज़ें जो BTR में नहीं लिखी हुई। छोटी कॉपी छोटी कॉपी छोटी कॉपी नहीं है, वो बड़ी कॉपी है। छोटी बड़ी कॉपी कॉपी है। छोटी कॉपी उसके बाद मैंने बनाई थी, तो वो बड़ी कॉपी है, लेकिन उसमें BTR के अलावा वाली चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। तो या BTR मतलब इज यूजफुल। ओके। थर्ड, डैम्स या भाटिया कुछ भी? डैम्स या भाटिया का तो डैम्स के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स मैंने जो है वो मतलब अपने नॉलेज बिल्डिंग वाले फेज में आई हैव यूज्ड। ओके। और एग्जांपल? हाँ, गायनी आई हैव यूज्ड, ऑप्थेल आई हैव यूज्ड। देन सर्जरी में GI सर्जरी एक राजीव सर पढ़ाते हैं, राजीव तिवारी सर के वीडियोस हैं, तो दे आर वेरी नाइस। तो नॉलेज बिल्डिंग फेज में मैंने डैम्स इन सब्जेक्ट्स में तो यूज़ किया है। और कुछ जो अपने इंटर्नशिप वाला अटेम्प्ट था उसमें कुछ सब्जेक्ट्स के मैंने TND भी देखे हैं, जैसे गायनी का मैंने TND देखा है। ओके। हाँ। और ये अनैट कहाँ से किया? नेट मैंने किया था अश्विनी सर के, बहुत कोई पुराने से वीडियोस हैं वो आपको भी पता होगा। अफरा-तफरी नहीं अफरा-तफरी से नहीं किया मैंने, बट एक उनके कुछ DBMC में कुछ पुराना पुराना कंटेंट है जो हाँ, काइंड ऑफ वहाँ बहुत से- अच्छा क्लासिक कंटेंट। क्लासिक सा एक वो है, Right. वहाँ से मैंने किया था। So that is one, I guess everybody has their own selective things जो जिन्होंने कहीं कहीं से करी होती हैं, and that is based on how you prefer your main resource. So that was the knowledge building phase and perhaps a summary phase where you are using something like so, but predominantly DBT वगैरह नहीं यूज किया like DBT भी जैसे अब गायनी का यूज़ किया था। देखो द थिंग इज कि इसमें पूरा बहुत डिटेल में ऐसे मुझे एकदम से ध्यान भी नहीं आएगा, मैं पूरा बता भी नहीं पाऊंगा। Right. सो आई विल ट्राई कि मैं इसको ना एक बार पेन डाउन कर दूं कि स्पेसिफिक मैंने, क्योंकि बहुत थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड सा पढ़ा था कि नॉलेज बिल्डिंग वाले फेज में स्पेसिफिकली, तो मैं एक बार लिख के आई विल मे बी शेयर मित्तल के उस पे या अपने उस पे कि भाई का ट्विटर बहुत एक्टिव है, ट्विटर का लिंक डाल देंगे हम डिस्क्रिप्शन में। ट्विटर पे वो थ्रेड डालते ना, थ्रेड डालेंगे। थ्रेड डाल देंगे कि ये टॉपिक मैंने यहाँ से पढ़ा था, मतलब वो थोड़ा मैं एक बार लिख के अच्छे से ना फिर आई बता दूंगा। बाकी मेनली जो मोटा मेनली ब्रॉडली ये चीजें हैं। लोगों को इसी रिसोर्स पे डाउट होता है कि हम ब्रॉडली क्या क्या खरीदें या क्या क्या लें। क्या क्या लें। सो शुरू में तुमने लेना है अपनी नॉलेज बिल्डिंग के लिए मैरो ले लो और व्हाटएवर सूट्स यू, एंड फाइनली तो तुम BTR पे रिलाई करोगे, स्पेशली ऑन एंड इन ऑल ऑफ दिस इफ यू आर एबल टू comfortable to skim through the notes, I think that is more efficient than anything else. I think that is about the resources. ठीक है, तो ये preparation का तो हो गया। ये how was radio, जिप्मर रेडियो कैसा रहा and क्या experience था? जिप्मर रेडियो इज लाइक गुड, मतलब अगर तुम्हें जिप्मर रेडियो मिल रहा है, तुम्हें रेडियोलॉजी करना है, सो यू शुड डेफिनेटली टेक इट, यू शुड नॉट गिव अ सेकेंड थॉट अबाउट इट। इवन चाहे तुम ऐसे कुछ लोग सोचते हैं कि मैं दिल्ली से हूँ, मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, तो शुड आई टेक इट, तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हैं, मतलब थोड़ी एडजस्ट होने में आती हैं, बट मतलब पीपल आर रियली नाइस, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही एडजस्टिंग हैं, और इस मतलब तुम्हें ऐसे नहीं लगेगा कि तुम ऐसे दूर आए हो घर से, तो तुम्हें हेल्प ही करेंगे उल्टा। तो करी थी, छुट्टी वुट्टी भी दी थी, पेपर से पढ़ने तो बहुत बहुत मतलब ऐसे कुछ नॉन टॉक्सिक है, ऐसे कुछ टॉक्सिसिटी नहीं है, सीखने का अच्छा है। सो मतलब इफ़ यू आर गेटिंग जिप्मर रेडियोलॉजी तो डेफिनेटली यू शुड टेक इट। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन मोर स्पेसिफिकली, क्योंकि ब्रांच में लोगों को डाउट ये होता है कि आउट ऑफ 5 हाउ आर द एकेडमिक्स? एकेडमिक्स आर गुड। जो डेली एक मॉर्निंग एक इवनिंग क्लास होती है, उसमें कोई ना कोई केस डिस्कस होता है, उसमें फैकल्टी बैठते हैं, फैकल्टी इज लाइक रियली इंटरेस्टेड इन टीचिंग, कि वो दे विल प्रोब यू कि व्हाई दिस व्हाई दैट, और उसके थ्रू यू लर्न। बी हाउ आर द वर्किंग आवर्स? वर्किंग आवर्स आई थिंक दिल्ली जितने चिल नहीं है, बट जैसे स्टेट कॉलेजेस जितने हार्श भी नहीं है। सो वर्क लाइफ बैलेंस है? वर्क लाइफ बैलेंस मतलब तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा अपना, लेकिन मिल जाएगा। अगर इतना टाइम है कि तुम रैंक 2 निकाल सकते हो तो बैलेंस तो है। और सी हाउ इज द क्लिनिकल एक्सपोजर, द काइंड ऑफ केसेस यू गेट? केसेस तो आई थिंक मित्तल वुड एग्री के, क्योंकि मेडिसिन वाले ही भेजते हैं रेडियो में। सो या तो केसेस तो आई थिंक ओके। कोई बात नहीं। ठीक है गाइस, ऑथेंटिक
ठीक है अपन कुछ कुछ इसमें editing नहीं करी जाएगी। टाइम ही नहीं हमारे पास ये सब है ना? करने का तो वैसे ही डलेगी है। हाँ, तो हम अपन क्या डिस्कस कर रहे थे? कि हाँ Jipmer radiology, क्लिनिकल एक्सपोजर clinical exposure। एकेडमिक्स डिस्कस किया हाँ, उसके बाद वर्क लाइफ बैलेंस फिर क्लिनिकल एक्सपोजर क्लिनिकल एक्सपोजर। हाँ, तो आई थिंक केसेस तो हर तरह के ही आते, मतलब हम्म। बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ केसेस में यू विल गेट टू सी एंड यू विल गेट टू लर्न, तो उसमें कोई डाउट नाइस तो मतलब बढ़िया रहा बढ़िया मतलब है। इट्स अ गुड प्लेस। एंड अगर नहीं आता रैंक तो आई वुड हैव कंटिन्यूड, आई वुड हैव डेफिनेटली कंटिन्यूड। और ये मतलब थोड़ा आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन ही बोल Yeah. सकते हैं कि हाँ दिस वाज लाइक कि गिविंग एन, जैसे आपने भी दिया था। हाँ Maybe- नेचुरली मेरा भी आ जाता तो भाई बाय बाय सी यू तो तो हो जाएगी। वो चीज़ है। तो आई थिंक ये सिमिलर नोट पे ये अगर थोड़ा भी पीछे आता है, इनफैक्ट दिल्ली पीजे के अलावा कुछ भी मिल रहा होता आई वुड नॉट हैव इवन कंसीडर्ड इसको। तो अगर फॉर एग्जांपल इसमें ना आता एंड लेट्स से बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैव आस्क्ड दिस कि दिस इज अ यूनिक टाइम जहाँ पे आईएनआई वाले लोग निकल गए हैं तुम जैसे स्मार्ट लोग अब नहीं देंगे नीट पीजी तो लाइक पीपल आर स्टिल वांटिंग टू गेट थ्रू नीट पीजी राइट एंड दे हैव 100 days they might have prepared for NICT so what would have your mindset been for the next 100 days and exactly क्या पढ़ाई करते हैं next 100 days के लिए सो सी ओके, तो पहले तो तुम खुद को असेस करो कि तुम्हें आता है, तुम यू गिव अ जीटी, अगर तुम्हें 125 120 इफ यू आर गेटिंग दिस मच करेक्ट्स है ना, तो फिर यू कैन गो इन फुल। अब तुम 100 days फुल पैक इन हो जाओ कि फुल अब एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर करना है, कुछ नहीं देखना है इधर उधर, और यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू। उसका कैसे करना है दैट आई विल टेल। बट अगर तुम 120 से कम ले रहे हो, 100 ले रहे हो या 110 ले रहे हो, तो फोमो में मत आओ कि अपनी प्रिपरेशन को अब अभी स्पेसिफिकली एग्जाम स्पेसिफिक मत लेके जाओ। अभी थोड़ा टाइम नॉलेज बिल्ड करो, एटलीस्ट फॉर अ मंथ और 2 तुम एग्जाम के स्केड्यूल के हिसाब से मत चलोगी। आई विल से कि तुम थोड़ा एफर्ट पुट करोगी, नॉलेज Natural timeline हाँ पर। थोड़ा नेचुरल टाइमलाइन लेके यू इंक्रीज योर स्कोर टू 120 125, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर इफ यू आर गेटिंग 190 ऐसा स्कोर तुम्हारा आ रहा है तो आपने पहले पढ़ाई नहीं करी होगी मोस्ट लाइकली, तो अब आपको करनी पड़ेगी इफ यू हैव टू कम्पीट विद दोज हु हैव डन, है ना। साफ सीधी बात अगले अटेम्प्ट के लिए तैयारी करो, मतलब yeah. इसमें आई टू यू नो मेक इट बिकॉज घर की भी 2 सीधा नहीं आई, 59 आई थी एंड वही 100 से 2 का डिफरेंस बहुत, मतलब टॉप 100 और टॉप 10 का जो डिफरेंस होता है उसमें एफर्ट लगता है और वो 6 months का एफर्ट है। तो सिमिलरली अगर अभी कहीं हम 10,000 पे खड़े हैं तो हमें उसको 1000 में लगाने के 6 महीने का एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा उसको। तुम ऐसे कोई वो नहीं है, उसका जादू नहीं है कि कुछ ऐसा कोई बता देगा कि तुम्हारा 100 days में यू विल बी डन। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर तुम्हारे 120 125 करेक्ट्स हो रहे हैं तो फिर मैं तुम्हें बोलूँगा कि अब तुम बिल्कुल उसमें मत रहो लैक्स में, अब तुम आ जाओ पूरे एग्जाम मोड में कि अब तुम्हें पूरा स्पेसिफिक पढ़ना है, एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है एंड यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू। तो उसमें फिर ये रहेगा सबसे पहले तो तुम अगर तुमने PYQs नहीं किए हुए तो PYQs करो। इवन आफ्टर सब टॉपर्स और सब फैकल्टी जो हैं दे से कि PYQs करो, आई हैव सीन मेनी पीपल जो कि इस पे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। इवन आई वुड से कि मैंने 4-5 साल की PYQ ढंग से कर पाया था बिकॉज अनलाइक नीट UG नीट PG या INI के लिए इतने PYQ हैं कि उससे बड़ा कोई क्यू बैंक नहीं है। 3400 क्वेश्चन है सिर्फ INI के। तो और वो भी तुम्हें जहाँ तक के पता है उसके पुराने पेपर भी एग्जिस्ट तो करते हैं। तो लास्ट 17 पेपर में 3400 है। तुम 17 पेपर मतलब क्या 8-9 साल ही तो हुआ। वही नीट UG के टाइम पे क्या लोग करते थे पुराने 20 साल के भी करते थे। तो अगर तुम उतने करने बैठो और नीट PG के अलग से करो तो 5-6 हज़ार सवाल हो जाते हैं, है ना। तो 5-6 हज़ार सवाल करना कोई मजाक नहीं है, मतलब 5-6 सवाल करना प्लस 5-6 हज़ार सवाल आना और उनके टॉपिक्स का डेप्थ होना उसमें ही तुम्हारे महीने निकल जाएंगे। इट्स साउंड वेरी सिंपल बट आई डोंट थिंक इट इज इजी। उसमें फिर एक ये चीज़ भी रहती है कि कई लोग क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो उनसे 1-2 सवाल नहीं बनते तो फिर उनको हो जाता है कि भाई आता नहीं है, अब दोबारा पढ़ने बैठ जाता है। नहीं, उसको उस सिटिंग में एटलीस्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लो और उसकी एक्सप्लेनेशंस पढ़ो। यू विल फाइंड कि
अगर तुम ऐसा करते हो एक दो बार करके इस प्रोसेस के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, जो तुम्हारा अपग्रेडेशन का स्पीड है, बेसिकली जो तुम्हारी नॉलेज इंक्रीज होने का स्पीड है, दैट वुड बी मच हायर देन समवन जो हु इज गोइंग बैक टू रीडिंग द कंटेंट. तो इट्स, वो बोलते हैं ना कि ग्रोथ इज ऑलवेज अनकंफर्टेबल. तो ये वैसा ही है कि लिफ्टिंग वेट्स इज अनकंफर्टेबल, तो डूइंग PYQs इज अनकंफर्टेबल क्योंकि वहाँ पे जैसे ग्रोथ muscle हो रही है. tears होते हैं. हाँ या तो दिस इज वही कि वो अनकंफर्टेबल है, इसीलिए उसको करने का फायदा है. ना तो वीडियोस देखने का फायदा है, ना किसी और बंदे को क्वेश्चंस करते हुए देखने का फायदा है. खुद जब तक नहीं करोगे तो तुम्हारा ग्रोथ नहीं होगा. तो बेसिकली वही आई फील टू समराइज कि द अप्रोच इज द 100-day strategy only applies to you if you are above a certain level. That level arbitrarily you can set as 120. If you are above a certain level, you have a target, then you go for the target. Otherwise, you try to reach that level first. and then you go to a target. So if your knowledge building is complete, then you go for the next 100 days. Then you can have a 100-day plan, which will have probably start with doing previous year questions, and then subject wise revisions and giving them 3 days, 4 days, 5 days, and creating that beautiful timetable that people end up creating. कि ये 100 दिन है, इसके 50 दिन में ये, इसके 50 दिन में ये, and that kind of a thing. Nice. ठीक है. तो नीट पीजी तो नहीं दे रहा है तू? नहीं दे रहा हूँ. कि उधर भी एक बार दे के नहीं नीट पीजी नहीं दे रहा. So what is the plan ahead? So प्लान हेड अभी एज ऑफ नाउ तो काउंसलिंग होएगी, तो उसमें लेट्स सी, अभी थोड़ी लोगों से बात करनी है कभी भी कि फाइनली क्या लेना है. मोस्टली मेडिसिन या रेडियो में से डेली आई टेक, और मे बी वी कैन डिस्कस ऑन दिस ऑल्सो. सो आई विल आस्क एज अ जूनियर फ्रॉम मित्तल के हु शुड टेक मेडिसिन, और मे बी आई कैन टेल, क्योंकि MBBS में हमें रेडियोलॉजी का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता, मे बी आई कैन टेल यू के how radiology feels like. So starting with you. Okay, so I feel medicine is a very mindset kind of a thing. You should, and I think it applies to both medicine and surgery, but I'll speak for medicine, that you should only take medicine if you love medicine. If you have real joy in seeing, treating, speaking to patients, because that is the center of medicine. Okay, it is not about reading guidelines. It is not about doing CPR, it is not about doing procedures. At the end of the day, it is about seeing and making patients feel better. And that is perhaps the reason why even things like Ayurveda, even things like, everything that is there based on wellness and lifestyle works. Because everything is about seeing someone and making them feel better. That is the base feeling of medicine. So if that gives you happiness, only then you should take medicine. And I think that was the core feeling that I had, which is why I felt like a medicine guy. Second thing is that I didn't want to do surgeries and I didn't want anxieties. My mind was more algorithmic rather than procedural. Okay, and in procedural things there is some level of innovation, some level of creativity on the spot of this, where everything is कि अब ये आर्टरी, मतलब मैं ऐसे इमेजिन ही करता हूँ कि आर्टरी कट गई तो क्या करना है. कहीं लिखा तो है नहीं कि आर्टरी कट गई तो क्या करना है, बट मेडिसिन इज मोर एल्गोरिथमिक, मोर प्रेडिक्टेबल, सो इट फील्स मोर साइंटिफिक. Okay. पढ़ने का कीड़ा है. It feels more scientific, can be used against him. But okay, that is what I feel, and that is perhaps the narcissistic medicine mindset. So that was one. So I was very sure I had to do medicine, and I have a long-term plan of doing a super specialty also in mind. That is one. Second thing is that I was getting everything else in AIIMS, मतलब रेडियो और मेडिसिन छोड़ के, कि कई लोगों ने बोला पीड्स कर लो, पीड्स और मेडिसिन सेम ही तो है. And some people were like, do surgery, this is a lot of money, less to read, ortho, end branch, all of those things were there. But ultimately, I felt branch is the more important thing. And उसके लिए I didn't get allotted in first round, FCNA. Okay. The fuckna someone. And then, but second round में, and I went home, I set up all my books. But within a couple of days, I got, okay, second round में I got allotted, and I thought, okay, let's go ahead with it. Challenges थे, language and etc. But I think it took a while to overcome that.
Like But- इस point पे I would like to express कि he has faced a lot of challenges. While क्योंकि it's not easy. It's easy to say कि you go from Jipmer and you go from Chandigarh to Jipmer जहाँ पे सब लोग तमिल बोल रहे हैं. I was still in radiology, so it was much more manageable for me. But coming to medicine, staying there alone. तेरे को आती है अभी तमिल? कुछ बोलना था मुझे नहीं आता. कॉल आ गया भाई, फिर से कॉल दोबारा बोला है 2 मिनट. हाँ तो बता भाई कुछ तमिल में एपड़ी रखेंगे. ठीक है इसको. तो मतलब बहुत अभी आप इनसे बात करोगे तो तमिल में ही इज लाइक वेरी फ्लुएंट. अरे यार बोल बाद में करेंगे. बता दे. ठीक है. आई थिंक इट शुड बी फाइन नाउ. हाँ तो मतलब अभी आप इनसे बात करोगे तमिल में सो इज लाइक सुपर फ्लुएंट और फ्लुएंट वगैरह कुछ नहीं हो, बट हाँ उसको लगता है. मुझे तो लगता है. बट माय पेशेंट्स डोंट एग्री. बट ठीक है, इट्स मैनेजेबल. And yeah, so but he had some familiar face here. I had that second point कि when he came here तो यहाँ पे he didn't have anyone जो इसको known था. मेरे लिए तो फिर भी मित्तल थे. So it was I think at least 50-60% very easier for me to get here and like stay. So yeah. So I think it's his love for medicine that made him stay here True. and survive all that. Yeah. तो फिर किसको लेना चाहिए रेडियो? अगर मतलब मेडिसिन में कहूँ कि टेक आउट ऑफ लव फॉर मेडिसिन, which is sometimes difficult to find or difficult to know. And one thing I tell him also कि अगर प्यार नहीं भी है तो जबरदस्ती प्यार करो और तुम्हें प्यार हो जाएगा. मतलब that is one way to look at it. But who should take radiology? Who should take radiology? So I think radiology में one thing that is changing is कि at the time जब मैंने लिया था तो लोग बोलते थे कि एंड ब्रांच है. So it was एक अच्छा फैक्टर. सेकंड जो लोग बोलते हैं कि मतलब थोड़ा वो है इसमें बहुत ब्रेनी है, दिमाग लगाना है, तो अगर तुम बहुत एकेडमिकली ओरिएंटेड हो तो तुम्हें रेडियोलॉजी करना चाहिए. सो इसमें मेरा ओपिनियन थोड़ा ओवर 6 मंथ्स थोड़ा सा चेंज हुआ है. आई एम नॉट सेइंग कि एकेडमिक नहीं है, दिमाग नहीं लगाना होता है, बट दैट्स लाइक वो बहुत एक पार्ट ऑफ द जॉब टाइप है. जैसे इफ़ यू हैव डन 10-20 अल्ट्रासाउंड्स तो उसके बाद जो 21st अल्ट्रासाउंड है उसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसे अलग से नया क्रिएटिव नहीं सोचना होता. आई थिंक दैट इज ट्रू फॉर entire medicine, not medicine branch, but anywhere in medicine. Anywhere in medicine. अगर तुम you start doing lab colis, you become a like lab coli becomes like driving a cycle. Yeah, something. So that thing is there. And other thing is कि most of the people who take radiology are confused between medicine and radiology. I think today is the time you should take radiology if you are confused between radiology and surgery, because it is more closer to surgery than it is to medicine. Interventions and because of everything else. So if you want to be a surgeon but you don't want the hectic things and you don't want perhaps so many legal complications. Yeah. And if perhaps you like being surrounded in like the latest technology. You know, this is like a real pro factor of radiology के the latest Claude use कर रहे हो, ChatGPT नहीं. अगर तुम्हारा वो level आ गया तो तुम radiology को yeah Claude use कर रहे हो. You are a radiology guy. तो I think if you are confused between radiology and surgery and फिर उसके बाद तुम radiology ले रहे हो, you are in a much better place than someone who was confused in medicine and radiology and has taken radiology. Because like we can disagree, we can have all kind of opinions, but artificial intelligence is going to have an impact on diagnostic radiology. Absolutely. है ना? So it will maybe upskill, it will take away the advantage that you have of being a good diagnostician. It will like we had discussed previously, you know, कि अगर पहले एक रेडियोलॉजी सेंटर को चलाने के लिए 10 रेडियोलॉजिस्ट चाहिए थे, अब जो एक सुपर ऑसम रेडियोलॉजिस्ट है उसके लिए कल भी जगह होगी और उसके लिए वो
और भी आसान होगा because he doesn't need to pay those inferior 9. But now if you're a radiologist, you have to be that superior one radiologist And, who will manage with AI a center which was previously run by 10 radiologists. By 10 radiologists. But those 9 people will perhaps have to, you know, move to a different city or or maybe work at a lesser cost or something. yeah, or maybe change into something, maybe super specialized, or maybe Or go do into more interventions, something maybe like that. something like that. So I think the branch is going towards that. So even if you have taken up radiology, you are into your first or second month, you can hear your senior residents, your senior JRs, your faculty like focus on more ke whether you are an intervention guy. So it's like a thing now कि as soon as तुम्हारा you mindset क्या है? yeah, it's like a mindset thing कि वो they're not assessing you. You have taken up a course in diagnostic radiology, but everyone around you is more interested कि are you interested in interventions? So this is a shift that I think that is there. We just started to make it more of a branch closer to surgery Yeah. than a branch closer to medicine, Medicine. as it used to be. Yeah. That is nice. ठीक है भाई. ठीक है. तो Okay. I think that was it. Yeah. तो बाकी कुछ भी doubts हो and to you all, I think Garg will reply to the comment section and also try to reply if anything directed to me. So thank you all. Thank you. And it feels happy, it feels proud, it feels sad at the same time. I will be out of a roommate, I will be paying more rent. Those things are But hurts more, paying the rent more or Definitely the rent बनिया at the end of the day. But ठीक है भाई, कोई और आ जाएगा तेरे जैसा, किसी और का रैंक निकाल देंगे. ये रैंक वो बन गया गुड लक Good luck house बन गया. So दुबई था पहले 15 दिन and then he got upgraded to PGI surgery. तो इस घर से जो भी आता है उसको आगे जाने को आगे मिलता जाने है. को मिलता है. ठीक है. Okay. Okay. We'll close this. Thank you.